हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द डेली हिंदू एनालिसिस ऑफ अप्रैल 20, 2022। लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सो द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़, ये थोड़ा सा फैक्चुअल न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है अबाउट द श्रीलंका फ्रॉम फॉरेन रिलेशंस और फ्रॉम फॉरेन अफेयर्स। सो श्रीलंका आफ्टर द इकोनॉमिक क्राइसिस इट इज़ गोइंग थ्रू द नाउ पॉलिटिकल क्राइसिस, and there has been a major demand over there, that is change in the political system of Sri Lanka. So अब यहाँ पे there is a public protest going on against the incumbent president Gotabaya Rajapaksa. So under this all the new development, now the Sri Lanka's prime minister, ध्यान देना श्रीलंका के president अलग हैं, prime minister अलग हैं. So Sri Lanka's prime minister Mahinda Rajapaksa, now he has proposed to reduce the executive power of the president. Sri Lanka में there is an executive presidency. Okay, so the head of the state is president. इसके पहले there was a 19th amendment. Okay, there was a 19th amendment which was passed in 2015, which curtailed the power of president and gave more power to prime minister. After that, in 2020, the 20th amendment was passed in Sri Lanka, restoring the executive presidency in Sri Lanka, that is giving more power to Sri Lanka. तो याद रखिएगा, जो 19th amendment है about Sri Lanka, it gave more power to prime minister and council of ministers and more say to parliament, that is holding executive responsible to the parliament. Then 20th amendment, it reversed this trend and gave more power to president, that is executive presidency. अब ये जो political crisis चल रहा है, इसमें now Mahinda Rajapaksa has said that let's get back to 19th amendment, that is giving more power to prime minister and holding executive responsible by the parliament. The next is about the extradition of Abu Salim. He is convicted in 1993 Bombay bomb blast case. So यहाँ पे अबू सालिम ही जैसे कि 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद जितने भी गैंगस्टर्स दोज हु वर एसोसिएटेड विद इट, दे फ्लेड आवर कंट्री. सम ऑफ देम दे वेंट टू मिडल ईस्ट. सो उसमें से एक जो अबू सालिम, ही वेंट टू पोर्टुगल, एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांटेड टू एक्सट्राडाइट अबू सालिम टू पोर्टुगल. So the Portugal authorities, they allowed the extradition of Abu Salim to India, but with one condition, that is कि जब extradition जब इनका हुआ था इस गैंगस्टर का 2002 में, तो द पोर्टुगल इंडिया को एश्योरेंस देना पड़ा था पोर्टुगल को कि अगले 25 साल तक, ओके, फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर पीरियड अबू सालिम कैन नॉट बी गिवन लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी. ओके, सो नाउ ओवर हियर the Union Ministry of Home Affairs has told the Supreme Court that the issue of honoring this assurance which was given by Indian authority to the Portugal while extraditing this gangster is only for till the year 2030. Now friends, let's come to this news. बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ये, इसमें काफ़ी इंफॉर्मेशन है. सो ओवर हियर यहाँ पे जो इसका न्यूज़ का बैकग्राउंड है, दैट इज़ अबाउट ट्विटर एंड हॉस्टाइल टेक ओवर. ये टेक ओवर ऑफ अ कंपनी बाय बाइंग द शेयर एग्रेसिवली. तो यहाँ पे एक अटेम्प्ट हुआ है ट्विटर को ओवरटेक करने का बाय एलॉन मस्क, हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला. सो देयर आर वेरियस वेज वेयर द कंपनी लाइक ट्विटर, दे एम्प्लॉय वेरियस वेज इन विच दे कैन प्रिवेंट दिस हॉस्टाइल टेक ओवर बाय एनी एक्वायरिंग एंटिटी, जैसे इस केस में एलॉन मस्क है. तो यहाँ पे ट्विटर ने जो टेक्निक यूज़ किया टू स्टॉप द अटेम्प्ट बाय एलॉन मस्क टू टेक ओवर ट्विटर, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉइजन पिल मैकेनिज्म. क्या होता है कि इसमें ट्विटर क्या करेगा कि अपने जो शेयर्स हैं उसको डाइल्यूट कर देगा, ओके, एंड इट विल नॉट अलाउ द हॉस्टाइल टेक ओवर कंपनी टू ओवरटेक द ट्विटर. इसका मतलब क्या होता है कि पॉइजन पिल मैकेनिज्म में the Twitter will say that it will give the shareholders, is existing shareholders, a primacy in buying more shares at lesser price, and to make to Twitter to buy those shares from the open market very expensive. तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे
सो द ट्विटर हैज़ डिप्लॉयड दिस पॉइजन पिल मैकेनिज्म. सो पॉइजन पिल मैकेनिज्म में देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दैट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मतलब कि टेक ओवर के पहले जितने भी शेयर होल्डर्स थे, दे कैन परचेज एडिशनल शेयर एट डिस्काउंटेड रेट. वो ट्विटर का एडिशनल शेयर खरीद सकते हैं एट discounted rate. Now what will happen with this? Now this discounted rate, buying the additional share at discounted rate is not available to the acquirer, इस केस में Mr. Musk. So what happens is that now these shares will be bought by existing shareholders, and now Mr. Musk will find it very difficult to buy these shares from the open market. So it will reduce the likelihood of entity which is acquiring the control of the country very difficult. Now there are some other defense mechanisms, that is the next is the green mail defense. So यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन मेल डिफेंस में होता है कि यहाँ पे कंपनी जो है, जो टारगेट कंपनी है, वो अपने शेयर को खुद खरीद लेती है एट अ प्रीमियम मतलब ज़्यादा दाम पे खुद के शेयर्स वो मार्केट से खरीद लेती है, सो दैट नो अदर कंपनी कैन टेक ओवर दैट कंपनी. इट इज़ कॉल्ड एज ग्रीन मेल डिफेंस. The next is the crown jewel defense. crown jewel defense में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल there is a company X, उसका जो सबसे प्रॉफिटेबल यूनिट है वो है A. Now there is company Z which wants to buy company X because it has interest in this unit A. तो जो कंपनी X है वो A को किसी और कंपनी को बेच देगी. ओके तो अब क्या होगा कि Z will lose interest in buying X because Z was interested actually in gaining the control of A which has been sold to other company. So in this way the X company has prevented the attempt by Z to take over X. तो इसको कहते हैं crown jewel defense. The next is Pac-Man defense. तो Pac-Man defense में क्या होता है कि यहाँ पे जो हॉस्टाइल टेक ओवर होता है, ये रिवर्स टेक ओवर के थ्रू इसको थ्रॉट किया जाता है. इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है जिसको टेक ओवर करने की कोशिश की जा रही है, वही कंपनी दूसरे उस वाले कंपनी को टेक ओवर कर देगी. फॉर एग्जांपल सपोज टेक एन एग्जांपल, देयर इज अ कंपनी एक्स एंड देयर इज अ कंपनी वाई. नाउ वाई वांट्स टू टेक ओवर एक्स. ओके सो एक्स क्या करेगी, वाई को ही खरीद लेगी, ठीक है ना, वाई का टेक ओवर कर देगा, फाइन, बाय बाइंग द शेयर. सो दिस इज कॉल्ड एज पैकमैन डिफेंस. द नेक्स्ट इज द वाइट नाइट डिफेंस. इसमें क्या होता है कि अगर कोई कंपनी का बोर्ड है विच इज़ फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ सिचुएशन दैट इट कैन नॉट प्रिवेंट दैट हॉस्टाइल टेक ओवर, तो वो क्या करेगी कि एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेगी कि वो अपना कंपनी किसी एक ऐसे कंपनी को बेचे विच इज़ नॉट हॉस्टाइल, विच इज़ मोर कॉर्डियल एंड विच इज़ मोर एकोमोडेटिव. तो यहाँ पे जो है जो कंपनी है, इट विल एग्री टू रिस्ट्रक्चर इट्स कंपनी इन सच अ वे, ओके, सो दैट द target company board such as it is a fair consideration for both the companies. The next is there is a word which has come in today's newspaper, that is panopticonism. So ये panopticonism है, it is a theory of Michael Foucault and he put this theory in his book called as Discipline and Punish, the Birth of Prison. अब हम आते हैं कि एक पैनोप्टिकोनिज्म ये वर्ड आया कहाँ से. तो एक बिल्डिंग होता है जिसको कहते हैं पैनोप्टिकॉन. तो पैनोप्टिकॉन एक ऐसी बिल्डिंग होती है कि सेंटर में बिल्डिंग होती है, ओके, एंड देयर आर प्रिजन्स. ओके सेंटर में जो खड़ा होता है, ही कैन सी एवरीबडी हु इज़ इन द प्रिजन बट नो बडी हियर कैन सी दिस पर्सन. ओके such type of structure is called as panopticon. Okay, panopticon. So it was introduced by English philosopher and architect Jeremy Bentham. तो अब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जो prisoner है, he or she doesn't know that if he or she is being watched or not. उसको हमेशा ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई यहाँ पे हमेशा खड़ा है जो उसको वॉच कर रहा है. ओके सो दिस विल लीड टू डिसिप्लिन. ओके फाइन. अब हमारा जो आज का सोसाइटी है वो कुछ ऐसा ही है. हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ठीक है. वी जस्ट डोंट नो दैट हु इज़ वॉचिंग अस. सो व्हाट हैपेंस दैट द सिटीजन्स दे ट्राई टू द individuals they try to discipline themselves just because that they know that there are CCTV cameras and they are being observed. So you can say that today's society itself has become a
panopticon. The next is the tie-up between India foreign university simplified. Now this is the domestic news coming. यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का नया रेगुलेशन आया है और ये इट इज़ एन अमेंडमेंट ओवर अ रेगुलेशन विच वाज पास्ड अर्लियर इन 2016. तो इसको अमेंड किया गया है इस साल और कुछ चीज़ों को बड़ी आसान किया गया है, स्पेशली फॉर ऑब्टेनिंग द डुअल डिग्री फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री एंड अब्रॉड. सो ओवर हियर द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने क्या किया है, इट हैज़ सिंप्लीफाइड द प्रोसीजर ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू ऑफर प्रोग्राम्स इन कोलाबोरेशन विद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस दे कैन एंटर इनटू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद अ फॉरेन कंट्री if they meet certain criteria and then they can offer this dual degree to the students. So यहाँ पे जो 557th मीटिंग था UGC का, यहाँ पे डिसाइड किया गया कि कोई भी इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जिसकी NAAC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीगेशन काउंसिल, अगर उसमें उसकी ग्रेडिंग 3.01 या उसके ऊपर है एंड इट इज़ ऑल्सो अमंग द टॉप 1000 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी और टाइम्स हायर एजुकेशनल रैंकिंग और अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ अंडर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीज़ करती है, 3 टाइप के एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए. पहला क्या, जो NAAC में जो उसका एक्रीडेशन है वो 3.01 के ऊपर है. देन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी या टाइम्स हायर एजुकेशनल रैंकिंग्स में 1000 के अंदर उसकी रैंकिंग है, या नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क में इट इज़ अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया. दे कैन टाई अप विद फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओके जो टाइम्स या QS रैंकिंग में 1000 के अंदर आती हैं. ओके, नाउ दिस न्यू रेगुलेशन इज गोइंग टू रिप्लेस द ओल्ड रेगुलेशन ऑफ 2016. उसका नाम था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2016. यहाँ पे देखिए मेजर डिफरेंस क्या है. द 2016 रेगुलेशन में क्या था कि कोई भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बिटवीन इंडियन यूनिवर्सिटी एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी UGC का अप्रूवल रिक्वायर्ड था. बट जो नया रेगुलेशन है इसमें UGC का अप्रूवल नहीं चाहिए. द यूनिवर्सिटीज दे जस्ट हैव टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया गिवन बाय द UGC एंड दे कैन एंटर इनटू MOU. द नेक्स्ट इज again this news is important. World WHO Global Center for Traditional Medicine, it is coming up in Jamnagar in Gujarat and it was inaugurated in the presence of Mauritius Prime Minister Pravind Kumar Jagannath and World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus. Okay, ये WHO का पहला एक ऐसा सेंटर है फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन. ओके, the next is this name is very important from our exam point of view. So here the president of the European Commission Ursula von der Leyen, so she is going to visit India. So over here the name is very important, that who is the president of the European Commission, which is the executive body of 27 member states, that is European Union. उसका headquarter है Brussels in Belgium and there are 27 member states. United Kingdom is not the part of European Union. So the president of the European Commission is Ursula von der Leyen. The next is star rating for packaged food unlikely to help, says experts. तो ये भी पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़ है. The Food Safety Standard Authority of India, it has released a health star rating for packaged foods in India. तो यहाँ पे क्या होता है कि the star rating it is from half a star to 5 star. ओके, सो यहाँ पे होता ऐसा है कि अगर हेल्दी फूड्स है अगर, ठीक है, जैसे कि नट्स हैं, ओके, फ्रूट्स है, सो दीज आर पॉजिटिव इंग्रेडिएंट्स. नेगेटिव इंग्रेडिएंट्स हम किसको मानते हैं, कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम. तो हम क्या करते हैं कि एक एल्गोरिथम ऐसा है कि अगर फ्रूट्स और नट्स हैं तो उतने पॉजिटिव मिलेंगे और अगर कैलोरीज, सैचुरेटेड फैट, टोटल शुगर, सोडियम है तो उतने नेगेटिव मिलेंगे. ठीक है. नाउ इमेजिन a food product which has fruits also, which has nuts also, along with that it has sodium, it has sugar, it has calories, etc. Fine. So what happens is कि suppose
आई एम टेकिंग फ्रूट नट्स अलॉन्ग विथ सोडियम एक्सेट्रा, ठीक है। तो जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैथमेटिकल एल्गोरिथम। अब ये जो स्टैंडर्ड जो स्टार रेटिंग दिया जा रहा है ये किसी भी फूड प्रोडक्ट का बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होगा उसके बेसिस पे नहीं है। इट विल जस्ट सी द क्वांटिटी, how much quantity of fruits are there, how much quantity of nuts are there, then how much quantity of sugar and etc are there. Based on that it will give the ratings. So over here the experts they have said that this star rating is unlikely to help because our biological mechanism is not based on mathematical algorithm. Now again a factual news from सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमिटी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, एक बॉडी है, एक एक्सपर्ट कमिटी है विच इज़ गोइंग टू ओवरसी कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फॉर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। सो दिस एक्सप्रेस कॉरिडोर, ठीक है ना, इट इज़ गोइंग टू इट इज़ गोइंग टू हैव एन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेटअप अ कमिटी। अब उस कमिटी के जो चेयरमैन हैं वो पहले थे चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड के, नाउ ही हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अंडर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। The next is Indian stand on COVID that count method is inaccurate। इससे रिलेटेड एक एडिटोरियल भी आया है तो वो न्यूज़ हम यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबर्स का पूरा गेम है कि कितने लोगों की डेथ हुई ड्यूरिंग कोविड-19, ठीक है। तो इंडिया का जो एस्टीमेट है, ठीक है, और WHO का जो एस्टीमेट है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। नाउ दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ मैथड ऑफ कैलकुलेशन विच इंडिया हैज़ ऑब्जेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो इंडिया का ऑब्जेक्शन है वो ये है कि जो WHO ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है इट गिव्स डिफरेंट मॉर्टेलिटी एस्टिमेट्स व्हेन दे आर यूजिंग द डेटा फ्रॉम Tier 1 कंट्रीज एंड अनवेरीफाइड डेटा फ्रॉम 18 इंडियन स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहना क्या है कि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, एक्सेसिबिलिटी बहुत वेरिड है। तो हम एक स्टेट का मॉडल और उसी के बेस पे अगर हम एक्स्ट्रापोलेशन करके दूसरे स्टेट का भी प्रेडिक्शन करें तो ये सही नहीं है। सो दिस लीड्स टू वाइड वेरिएशन, ओके, एंड द एक्यूरेसी ऑफ सच मॉडलिंग एक्सरसाइज इज इन क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि एक्सेस डेथ जो है, एक्सेस डेथ क्या होता है, एक्सेस डेथ मतलब कि डिस्क्रिपेंसी और मिस्टेक रिकॉर्डेड इन नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द पैंडेमिक ईयर्स ऑफ 2020 एंड 21 compared to the average death recorded in the pre-pandemic 2019 and 2018, okay। तो यहाँ पे ये है कि India is saying that the WHO has divided the whole world into Tier 1 and Tier 2 country and it has used a mortality figure from Tier 1 countries and has used them on Tier 2 countries। मतलब Tier 1 country से उसने डेटा निकाला and has used those data on Tier 2 countries to arrive at a number using any statistical method। So अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पे जोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है तो वो मेथड यहाँ पे सूट नहीं करता अकॉर्डिंग टू आवर गवर्नमेंट। अब देखिए अगर न्यूयॉर्क टाइम की हम बात करें तो न्यूयॉर्क टाइम क्लेम्स दैट देयर हैव बीन 15 million deaths by the end of 2021 or more than twice the official total of 6 million reported by countries individually। तो WHO का जो estimate आ रहा है that is if you will just see that it is twice of what the each country have accounted for the total number of deaths in their own country। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें तो it is 5.2 lakh और जो WHO कैलकुलेट कर रही है it is 4 million death that is 40 lakh, ओके, मतलब 8 टाइम्स। तो WHO का जो कैलकुलेशन है इट इज़ 8 टाइम्स ऑफ दैट। द नेक्स्ट इज चाइना एंड सोलोमन आइलैंड दे हैव साइन लैंडमार्क सिक्योरिटी एग्रीमेंट। सोलोमन आइलैंड जो है ये ओशियाना के पास है, पैसिफिक के ओशन में आता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास में है। सो चाइना इट हैज़ साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड
okay, and it can pave for the way of new Chinese security deals overseas. अब इस एग्रीमेंट्स के पार्ट क्या क्या हैं? Now see, under this agreement, the two sides, they are going to conduct cooperation in maintenance of social order, protection of safety of people, lives and property, humanitarian assistance, natural disaster response. Okay. अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं नेबरिंग में, लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंक्लूडिंग यूएस. दे हैव रेज्ड कंसर्न दैट दिस मे लीड टू एस्टेब्लिशिंग मिलिट्री बेस इन सोलोमन आइलैंड. मतलब चाइना का एक पॉलिसी है दैट इज increasing its influence in Indo-Pacific region, but the Solomon Island has said that there has been no agreement for Chinese military base. अब यहाँ पे देखिए कि पास्ट में क्या हुआ है, that why these countries are raising objection. So in 2017, China opened its first overseas military base in Djibouti near the Horn of Africa. Now from economy, the impact of Russia-Ukraine crisis on India's for GDP. तो जो IMF है, International Monetary Fund, it has cut India's forecast to 8.2% due to war. मतलब पहले IMF had predicted that India will grow at 9% in the current fiscal year. Now it has been degraded to 8.2%. Sorry, downgraded to 8.2%, which is reduction of 0.8% point. Now the main reason for this is Russia-Ukraine crisis and trade shock. Because of Russia-Ukraine crisis, disruption in supply chain. The next certain reasons are a slowdown in Chinese economy because of COVID-19. Now friend, let's look at this news. Again there is a hint of energy crisis in India. Yesterday when we were doing WPI inflation, तो हमने वहाँ पे देखा था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस के वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा सर्ज हुए हैं. अब ये और ज़्यादा सर्ज हो सकते हैं इफ़ देयर इज़ कोल क्राइसिस, बिकॉज इंडिया मोस्टली रिलाई ऑन थर्मल पावर प्लांट फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट रिक्वायर्स कोल. अगर ये कोल अगर अवेलेबल नहीं है, सो द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी हिट. सो नाउ इन मोर देन 100 थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया, द कोल स्टॉक हैज़ फॉलन बिलो द क्रिटिकल मार्क. क्रिटिकल मार्क मतलब लेस देन 25% ऑफ द रिक्वायर्ड स्टॉक. ओके, नाउ इट हैज़ फॉलन बिलो द 10% मार्क in 50 plants. Fine. So it is going to impact the power generation. Now there is already power shortages going on in Andhra Pradesh, Jharkhand, Uttarakhand and Madhya Pradesh. Now friends, let's come to the editorial victims से. तो यहाँ पे बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के कल जजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था रिलेटेड टू दी लखीमपुर खेरी केस. लखीमपुर खेरी केस में क्या हुआ था, एक यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स अजय मिश्रा, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, ही रैन अ कार किलिंग 4 फार्मर्स एंड जर्नलिस्ट इन लखीमपुर खेरी वाइल फार्मर्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दी 3 फार्म लॉस. अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इनका बेल एप्लीकेशन आया हाई कोर्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे इनको बेल दे दिया गया और इस बेल को चैलेंज नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्रिटिसाइज्ड दिस बेल ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट सेइंग दैट दिस जजमेंट हैज़ नॉट गॉन इनटू द it has taken a very narrow view of evidence and it has not gone into the taking the merit of the case. तो यहाँ पे जब ये हुआ कि बेल देते वक्त विक्टिम्स का क्या अधिकार है, विक्टिम्स का क्या राइट है, तो दिस जजमेंट गिव्स विक्टिम्स राइट इन एवरी स्टेज ऑफ जुडिशियल डिसीजन इंक्लूडिंग द बेल ऑर्डर. सो यहाँ पर हम देखेंगे दिस पैराग्राफ, इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग. That the Supreme Court has pointed out that the High Court had needlessly gone into the nature of the evidence, in the nature of the evidence in which the vehicle was driven into the crowd.
So Apex Court has concluded that irrelevant material was considered for grant of bail while ignoring the established parameters. Now the next is the court order, that is Supreme Court order. It highlights the right of victims to be heard at every stage of criminal proceedings. जो इस बेल, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो बेल ऑर्डर है उसमें ये चीज़ नहीं हुआ. सो बिकॉज ऑफ दिस द सुप्रीम कोर्ट हैज सेट असाइड द बेल ऑर्डर ऑफ आशीष मिश्रा. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.